Welcome everybody to our regular Thinking Thursday. We are going to start with a small video of Seva Sangha, a program that we do at Rishikesh every year. And this year it's going to be from October 13th, 14th and 15th. So Shakuntala ji is going to show us a video. Got this opportunity yet again to be a part of this wonderful Seva, and my coming back has just made me realize that Seva is all that is to life, and that is the bhav that I will move out with. Thank you. Thanks. So we had Manisha talking about Seva. नमस्ते, मेरा नाम शकुंतला है और मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि इस सेवा से बिगिनिंग से जुड़ी हुई हूँ। तृप्ति मैम और रिताली मैम और राजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना खूबसूरती से रिताली मैम और राजीव सर इसको होस्ट करते हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। तृप्ति मैम की तो क्या तारीफ़ करूँ, अभी तो वो हमारी गुरु ही नहीं सब कुछ है। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म 5 साल से मैं तो पूरी ज़िंदगी बदल दी है। और पिछले 3 साल से इस सेवा संगा में माँ ज्ञान का होना, इसमें और ही रोशनी में और ही निखार लाता जा रहा है। सोने पे सुहागा हो गया। थैंक यू रत्ना फॉर योर परफेक्ट हिंदी। और माँ चित्रा माँ का जो ब्यूटीफुल फैमिली कॉन्स्टलेशन है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिन भी लोगों ने इसे महसूस किया या जो भी ऑडियंस थी, यहाँ से जाते ही उनकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव होगा। और सारे पार्टिसिपेंट्स इतने अच्छे कि जी खुश हो गया। कोई मेरे से पूछे कि मार्क्स कितने दे, वैसे मैंने शुरू में बोला था मैं तो 5 साल से एंजॉय करूँ, आप भी करिए, मोस्ट प्रोबेबली आपने एंजॉय किया होगा। और अगर कोई मेरे को पूछे कि मार्क्स देने हैं तो मैं इनको 100 में से 200 मार्क्स दूंगा। अच्छा, अब अभी लास्ट एक दो लाइन गाने। सबसे पहले मेरा नाम सुजाता आहूजा है और मैं रुड़की से आई हूँ। और सेवा संघ में मैं पहली बार आई हूँ, बट तृप्ति मैम को पहले मिल चुकी हूँ, रिताली जी को भी मिल चुकी है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और जो कुछ हमने यहाँ सीखा और करा उसको मैं 2 लाइनों में गाऊंगी, आप सब लोग मेरे साथ गाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Thank you. Wow. This was so cute. I will show the video. That's all. Thank you, Shakuntala. This year's Seva is, like I said, October 13, 14, 15th. Shakuntala, if you have the PPT, you can show it. Yes, ma'am. 1 minute. Chitrupadan ji is time aa rahe hain, Swami ji, who is also from Chinmaya Mission, Noida.
So he's going to be our main speaker. Here he is. Swamiji yahan hai, Chitrupanand ji. And then we have Dr. Sanjeev, who is a Swar Yoga expert. He's from Rishikesh. Then we have Dr. Harsha, who's also a Ayurvedic Acharya. And then we have Dr. J.V. Dikshit. He's going to be coming from Pune with his wife. He's also an Ayurvedic expert. और वो लोग private sessions भी लेने वाले हैं, he and his wife. So, इस time का सेवा is going to be called Beyond to Bliss, a roadmap to happiness. जिसमें कि कोशास जो पंचकोश है, उसको लेकर पूरा theme है. So every speaker is going to talk about the Panchakosh in their own way, उनके अपने अपने experiences के हिसाब से. जैसे हाँ, and this is it. ये हमारे rates है इस time सेवा के. आप देख सकते हैं, you can click a picture of this and we can put it on the group. So people will have the rates that are going. योग निकेतन में है, ऋषिकेश में. So please join करिए. Spend time with us. ये रहे. I'll share the PDF. हाँ, share कर लीजिएगा सबके साथ. हाँ, PDF share कर. This person, Dr. J.V. Dikshit, I personally don't know him, but it's been recommended by actually when we had gone to meet Swamiji. Swamiji ने recommend किया था कि आप इनको बुलाइए. He's excellent. शायद उन्होंने उन लोगों के साथ काम किया होगा. So we are calling him. बहुत ही interesting सेवा होने वाला है इस time का. And of course we have ये इनकी wife है Dr. Anjali Dikshit. वो personal sessions लेने वाली है first come first serve basis पे वहाँ पर. So you don't have to pay anything for these sessions. जो भी आप payment करेंगे to attend सेवा, उसी में ये सब चीजें होगी. तो with Swamiji, of course, personal time मिल सकता है आपको बैठने के लिए. So that is interesting. And ये हमारे सब wonderful people, Swati, Anurag, Dreams के ऊपर workshop करने वाली, आकाश, Akashic Records पे. All our wonderful friends are going to be presenting. Ratna भी है, Shakuntala is also going to be talking, mini workshop on astrology. Dance therapy के ऊपर है भावना. Manju is coming in for the first time at Seva, talking about shadow and wholeness. और बहुत सारे other speakers हैं जिनके posters हैं हमारे पास. Param of course आने वाली है, talking about silence. And Rajiv and my dear friend Ritali जो सेवा host करते हैं every year. तो 2015 से हमने start किया था और every year has been wonderful. तो बस हम continue कर रहे हैं. आप आइए और spend time करिए हम सबके साथ में. Pooja, dear Pooja is going to be talking on tarot, and we have Ritu, of course, on self-love. I think we have about 11 or 12 mini workshops जो दोपहर में होंगी. So Priyanka is coming from Pune. So please come, join us for Seva. Ranika is there talking about self-healing. बहुत सारे people have got together to make Seva very successful. तो बस आइए और साथ हाथ अपना बढ़ाइए और join Seva and enjoy with us. Thank you, Shakuntala. Welcome. And let's have Ratna. Yes, namaste दीदी, I join. हाँ जी, बोलिए. नमस्ते. नमस्ते दीदी, मैंने ज्वाइन कर लिया है. अरे वाह, डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया. चलो, थैंक यू. हम मिल रहे हैं सेवा प्रोग्राम में. Priyanka was part of the Bangalore workshop that just got over. So thank you, Priya, for joining in Thinking Thursday. Okay, so Dr. Ratna Mishra, she's going to be our speaker today. And I think part 1 तो सबने attend किया ही है ना, मर्मा therapy का. There she is. और ये part 2 है. I think थोड़ा बहुत Ratna is going to talk of part 1, है ना? Part 1 also. Many Yes. people may have missed part 1. Yes. तो Yes. थोड़ा सा Ratna बात करेगी. Ma'am, this you थोड़ा सा
आप Yes. introduce कर दीजिए। Of course, Hmm. past life regression therapist Ratna has been for a couple of years now, I think more. कब किया था रत्ना आपने? 15 2015. लो चलो ठीक है, काफी साल हो गए। minute. अरोमा थेरेपिस्ट है, मर्मा थेरेपिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर, एंड ऑल्सो फैसिलिटेटर ऑफ हील योर लाइफ, लुई है की हील योर लाइफ, वो भी रत्ना करती है। एंड शी इंटीग्रेट्स अ लॉट ऑफ अदर modalities when she works with the client. और मर्मा का मैंने भी एक्सपीरियंस किया था इन सेवा। आई हैड सम शोल्डर में बहुत पेन था, एंड शी हैड वर्कड ऑन माय पेन एंड रिलीफ मिला था मुझे। थैंक यू मैम। So let me welcome Dr. Ratna Mishra to our Thinking Thursday. She's been part of our group for a long time, since it started, and one of my favorite students. हमेशा टच में रहती है, मैं भी टच में रहती हूँ, comes over, spends time with me. और अरोमा थेरेपिस्ट तो मैं कह सकती हूँ 100% है ये। She always gives me some amazing aroma oil sprays. They are awesome, fantastic है वो। So Ratna, go ahead. थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you. यस मैम। Okay, here we go. सो मर्म थेरेपी जो है, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर रही हूँ कि ये मर्मा लोग इंग्लिश की वजह से बोलते हैं, इसका एक्चुअल नाम है मर्म। इसे बहुत पहले लोग कहते थे कि उसने हमारे मर्म को नहीं समझा। मर्म हमारे शरीर के सबसे नाजुक हिस्से होते हैं, जिस हिस्से में हमारे जॉइंट्स मिलते हैं। जॉइंट्स मतलब बोन, मसल्स, नर्व्स, ये सब जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को मर्म कहा जाता है। तो सबसे सॉफ्ट और सबसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, इसीलिए इनको मर्म कहा जाता है। तो मर्म थेरेपी एक तरह से दुनिया की सबसे पहली चिकित्सा है, यानी थेरेपी है, कि जब दवाइयां नहीं होती थी, किसी तरीके के कुछ ऑयल्स भी तब नहीं होते थे इलाज करने के लिए, उस वक्त में लोग मर्म थेरेपी का इस्तेमाल करते थे। तो मर्म थेरेपी का मैं इंट्रोडक्शन पहले दे दूं कि मर्म थेरेपी जो है वो हमारे संतों ने शुरू किया था। साधु संत जब कोई बीमार होता था, कुछ होता था, तो उनके पास कोई दवाइयां कुछ नहीं होती थी, वो सिर्फ इसी थेरेपी के थ्रू लोगों को ठीक करते थे। तो सबसे जरूरी होता था कि वो लोगों को बताएं कि आप आओ और किस जगह के पॉइंट को और कितने प्रेशर के साथ और कितनी बार प्रेस करना है, जिससे वो हील हो जाते थे। तो छोटे छोटे दर्द के लिए किसी को कहीं जाना नहीं होता था, लोग खुद से खुद को हील करते थे। तो एक तरह से जो मर्म थेरेपी है वो हमारे शरीर को खुद ही हील करना सिखाती है, मतलब हमारे इनर पावर को बताती है कि हमारा जो शरीर बना है उसको हील करने के सारे पॉइंट्स इस शरीर में दिए हुए। तो ईश्वर ने सिर्फ शरीर नहीं बनाया, रखने के उपाय भी बताए हैं। समय के साथ लोग भूलते चले गए, इसलिए मर्म थेरेपी भी चली गई। इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने ये थेरेपी स्टार्ट करी थी सिर्फ लोगों की सेवा के लिए, या आपस में जो भी उनके यहाँ किसी को कुछ भी तरह की प्रॉब्लम होती थी, मर्म थेरेपी से उसको ठीक करते थे। तो उन्होंने वहां से शुरुआत करी। धीरे धीरे लोगों को, वहां के जिस भी जगह में रहते थे वहां के राजाओं महाराजाओं को पता चला, तो उन्होंने उन ऋषि मुनियों को बुलाना शुरू किया और कहा कि आप सब आइए और हमारे यहाँ सैनिकों को सिखाइए। क्योंकि बहुत बार दुश्मन अचानक से हमला करते थे, तो उन्हें पता ही नहीं होता था कि वो दुश्मन से मुकाबला करें कैसे। जब उनके हाथ में कुछ कोई भी हथियार नहीं है, तो कोई भी आकर कैसे भी उनके साथ उनको मार सकता था या जो भी हानि पहुंचा सकता था। तो उन्होंने उसके लिए बोला कि हमारे सैनिकों को सिखाइए ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सके। तब ऋषि मुनियों ने सैनिकों को ये सिखाना शुरू किया। सैनिकों से होते होते और जगह में बात फैली और लोगों ने सीखना शुरू किया। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोगों ने इस थेरेपी को इतना पॉपुलर कर दिया कि फिर लोगों ने इसका मिस यूज करना शुरू कर दिया। कुछ गलत लोगों के हाथ में जब ये थेरेपी पहुंची तो उन्होंने मिस यूज करना शुरू किया और इस थेरेपी को उन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज करना शुरू किया। तो ऋषि मुनियों को ये बात तो अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने धीरे धीरे करके इस थेरेपी को समय के साथ
गुप्त कर दिया, मतलब छुपा दिया, उसके बारे में बात ही नहीं करी। तो जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ये भी थेरेपी भी अपने आप समय के साथ लुप्त होती चली गई। फिर वो मॉडर्न टाइम आया, फिर बहुत सारी चिकित्सा आई, आयुर्वेद आया, होम्योपैथिक आया, एलोपैथिक आया, तो लोग इस इलाज में आ गए, क्योंकि उसके बारे में आज के लोगों को पता नहीं था। तो जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने एलोपैथिक से होने वाले नुकसान को भी झेलना शुरू किया, क्योंकि साइड इफेक्ट होते हैं हर थेरेपी के। तो जैसे जैसे उन्होंने इस थेरेपी की एलोपैथिक लेना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत आ रहे हैं। तब लोगों ने हील की तरफ अपना रुख किया कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर हमें बहुत दर्द है और हमें दर्द की दवा नहीं खानी पड़े, हम उसको अपने आप ही। ऐसे डॉक्टर सुनील जोशी हैं जो हरिद्वार में रहते हैं, उन्होंने इस मर्म थेरेपी को वापस से सबके सामने लेकर आए। उन्होंने धीरे धीरे इसका प्रचार शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया। मैं भी एक भाग्यशाली स्टूडेंट हूँ कि मैंने उन्हीं से सीखा, और उन्होंने एक एक चीज बताई, हर मर्म का उन्होंने फायदा भी बताया और हर मर्म का नुकसान भी बताया। ये भी बताया कि किस प्रेशर से आपको करना चाहिए और किस हद तक करना चाहिए। तो इस तरीके से मर्म थेरेपी से मेरा परिचय हुआ। ऐसे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोग मर्म थेरेपी के बारे में जानने लगे, और आज आई थिंक काफी लोग जानते हैं इस बारे में। तो पिछली बार हमने बात करी थी हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से के बारे में, अपर एक्सट्रीमिटीज, जिसमें हम कमर से ऊपर के पॉइंट्स बता रहे थे। तो यानी कमर से ऊपर के जो भी हमारे पेन होते हैं, वो सब किस किस पॉइंट से हील हो सकते हैं, उसके बारे में एक हम थेरेपी बताते हैं। शुरुआत करते हैं। शगुफ्ता जी सीधे आप वही दिखा दीजिए मुझे। ठीक है। अच्छा, प्रिकॉशन बता देती हूँ, सॉरी, प्रिकॉशन बताती हूँ। सबसे पहले मर्म थेरेपी को शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां लेनी जरूरी होती है। जिसमें पहली सावधानियां ये है, ये आयुर्वेद में चरक संहिता में मुनि सुश्रुत ने लिखा हुआ, जो इस दुनिया के पहले चिकित्सक माने जाते, उन्होंने ये सब सावधानियां लिखी हैं। तो सबसे पहला जो प्रिकॉशन लेना है वो ये है कि इस थेरेपी को फीमेल्स स्टार्ट करेंगी बाएं हाथ से और मेल स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से। लेफ्ट और राइट का ये डिवीजन आपको समझना है। ये नियम क्यों बनाया था इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर जैसा उसमें लिखा है वो ही हम बता रहे हैं, और वैसे ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो फीमेल्स अपना लेफ्ट से स्टार्ट करती हैं और मेल अपने राइट से स्टार्ट करते हैं। और मर्म थेरेपी को खाना खाने के तुरंत बाद कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बहुत खास ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ही आपने खाना खाया और इमीडिएट करेंगे तो आपको वॉमिट हो सकती है। तो इस तरह की नौबत ना आए, इसलिए आपको पहले से समझना है कि खाना खाने से कम 1.5 से 2 घंटे बाद आपको ये थेरेपी करनी है। इसे जब भी हम लोगों को मर्म थेरेपी सिखाते हैं या करवाते हैं, हमेशा उनको बता देते हैं कि जब आप ये थेरेपी करने आ रहे हो तो कम से कम 2 घंटे पहले आप कुछ खाओ, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई असर नहीं आना चाहिए। और बेस्ट मर्म थेरेपी जो होती है वो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक करी जाती है, खाली पेट। खाली पेट मर्म आपको वैसे ही फायदे देता है जैसे आप 1 घंटा जिम करके आते हो, वो सारे फायदे मिल जाते हैं अगर आपने सुबह में 10 से 15 मिनट मर्म थेरेपी अपने पूरे शरीर में कर, मतलब अपर पॉइंट्स भी ले लिए और लोअर पॉइंट्स भी ले लिए। तो ये तो हो गए प्रिकॉशन। अभी आप बताइए, मैं हाँ, और एक मर्म थेरेपी के पॉइंट्स को आप दिन में मैक्सिमम 3 बार स्टिमुलेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि हर चीज का एक बैलेंस बना हुआ है। तो जैसे ही आप ज्यादा करते हो मे बी वो आपको नुकसान भी कर सकता है। तो अगर सीमित समय में करते हैं, जैसे हमने 15 से 20 बार बताते हैं, 18 से 20 बार एक पॉइंट को प्रेस करना चाहिए। पॉइंट्स कैसे हैं वो हम बताएंगे, लेकिन 18 से 20 बार एक एक पॉइंट्स को प्रेस करना चाहिए, और दिन में आप 3 बार कर सकते हो बस। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं आपके शरीर में जो ऐसी बीमारियां, जैसे बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, ये लोगों ने धीरे धीरे करके दवाइयां छोड़ी हैं जब इनके पॉइंट्स उन्होंने रेगुलर प्रेस करने शुरू किए। ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ये हमने अपने कैंप्स में लोगों को सुना है और देखा है।
और अगर कोई दूसरे की मदद करना चाहता है और मर्म थेरेपी देना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट होता है कि वो रुद्राक्ष पहनकर ये मर्म थेरेपी किसी को दे। खुद के लिए तो ठीक है, पर किसी और को अगर आप देते हैं तो रुद्राक्ष पहनना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत विशेष बातें हैं जो ध्यान रखनी बड़ी जरूरी है। अभी मैं पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ। तो ये हमारे पूरे हाथ पे यहां से लेकर यहां तक सारे पॉइंट्स होते हैं। तो पहला पॉइंट होता है क्षिप्र मर्म। ये इस उंगली और इस अंगूठे के बीच में होता है। ये अगर आप लोग वीडियो पे आएंगे तो मैं दिखा सकती हूँ। ये अंगूठे और इस उंगली के बीच में जो ये ज्वाइंट है, यहाँ पर पॉइंट्स है। आप लोग देख सकते हैं, आप ट्राई करके देखिए। आप जैसे ही वहां पे प्रेस करेंगे आपको पेन होगा। देखिए ये पॉइंट है। ये पॉइंट बैक पेन के लिए भी है। बैक पेन का मैं बताती हूँ। ये पॉइंट्स आपके जितने हाथ के बता रही हूँ वो आपके शोल्डर रिलेटेड, हाथ से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, यहीं से रिलेटेड है आपके। और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके डायबिटीज और बीपी और आपके किडनी इश्यूज, इन सबको हील करते हैं। वो मैं एक एक करके पॉइंट बताती हूँ। तो ये जो पॉइंट है इससे आपका हार्ट और फ्रोजन शोल्डर, स्टिफ नेक या हाथ का कोई भी दर्द, एनी पेन, इस पॉइंट से हिले तो उसको बोलते हैं क्षिप्र मर्म। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आता है। या नेक्स्ट ये देखिए, ये आप अपने हाथ की ऐसे मुट्ठी बांधिए। जहां पर आपकी मिडिल फिंगर टच करती है इस पॉइंट को कहते हैं तल हृदय। नाखून काटने के बाद ना। हाँ, ये है तल हृदय। ऐसे बंद करेंगे जहां पर मिडिल फिंगर टच करती है। इसको दबाइए, आपको पेन होगा। इसको दबा के देखिए। मर्म थेरेपी के अनुसार हमारे शरीर में 5 हृदय होते हैं। एक तो वो हृदय जो यहाँ पर है, और बाकी जो नसें सीधे हृदय से मिलती हैं वो एक ये है, एक ये है। ऐसे ही 2 पॉइंट्स पैर में। तो ये है तल हृदय। तल हृदय से आप हार्ट रिलेटेड किसी भी चीज को हील कर सकते हो। भारीपन है, सांस लेने में तकलीफ है, सडनली किसी को बहुत पेन शुरू हो गया है, आप इसको प्रेस करते रहिए। ये इंस्टेंट रिलीफ देता है किसी भी हार्ट पेन से। मतलब ज्यादा बढ़ जाएगा तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ अगर अनइजीनेस गैस की वजह से हो रहा है, आप सिर्फ ये तल हृदय दबाइए दोनों हाथों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों हाथों में, और आप फील करेंगे कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल रहा है। इसका और एक बड़ा फायदा है कि अगर कोई बेहोश हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, उसको होश में लाने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, आप उसका तल हृदय दबाते रहिए थोड़ी देर तक, और आप देखेंगे वो कॉन्शियस हो जाए। या नेक्स्ट ये है मणिबंध। ये जहां पर हमारी खत्म होती है हथेली और हाथ शुरू होता है, ये हिस्सा है। आप देख सकते हैं ये हिस्सा, ठीक उसके नीचे। और अपने हाथ को आप ऐसे ऐसे करिए, वो मर्म पॉइंट्स अपने आप प्रेस होंगे। फील हो रहा है?
मणिबंध भी सेम काम करता है। एक तो आपके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है। दूसरे, मणिबंध का जो सबसे बड़ा काम है, ये इंसोम्निया को हील करता है। नींद ना आने की जो बीमारी आजकल बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है कहेंगे, क्योंकि लोग रात में बैठ के मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, उन्हें समय का पता ही नहीं चलता है, और धीरे 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 वो आदत इंसोम्निया में बदल जाती है। या कोई बहुत स्ट्रेस में है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही, उसको सिर्फ ये करने बोलिए, आप देखेंगे में वो जमाई लेने लगेगा। मैम इस पॉइंट को दबाना है कि इसको आप सिर्फ ऐसे पकड़िए और हाथ घुमाइए, पॉइंट्स अपने आप दबे। ठीक है। और आप नीचे, ऋतिका आप नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर करिए, हथेली जहां खत्म हो रही है ठीक वहीं पे टच। ये लाइन के पास मैम, कौन सी? दिस लाइन जो जहां खत्म हो रही है, ये लाइन हथेली से ठीक नीचे जो लाइन है ना, ठीक हाँ जी, हाँ। ओके। इस मर्म को कहते हैं मणिबंध। ठीक है, अभी आपने इतना देखा, अभी आप ये जो आपका जॉइंट है, हाथ का जॉइंट, ये जॉइंट, ये जो जॉइंट है, इसके यहां से 4 उंगली की नाप लीजिए, 4 उंगली, जॉइंट से नीचे 4 उंगली, लिया? जहां पर आपकी छोटी उंगली पहुंच रही है वो पॉइंट है, इसको कहते हैं इंद्रबस्ती। ये देखिए, और हर एक के हाथ की उंगलियां अलग अलग होती है, किसी की पतली होती है, किसी की मोटी होती है, इसलिए किसी और के लिए आप अपनी उंगली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिसके आप अगर किसी और को मर्म दे रहे हैं तो उसकी उंगलियों की नाप लेनी पड़ेगी, या अगर वो नाप लेने की स्थिति में नहीं है तो अंदाजा कर लेंगे कि उसकी उंगली मोटी है। ये करके ये जो पॉइंट है इंद्रबस्ती, ये आपकी किडनी रिलेटेड एनी प्रॉब्लम में हेल्प करता है। किसी किसी को बहुत इश्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि हम बार बार बाथरूम जाते हैं, हमें फील होता रहता है, तो अगर आप ये रेगुलर दबाते रहेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, और हर पॉइंट पे आपको पेन होगा, क्योंकि अगर पेन नहीं हो रहा है मतलब आपने सही जगह प्रेस नहीं किया। इसीलिए हमारे शरीर में हर चीज की नाप दी हुई है, उस नाप दोनों किडनीज के लिए एक ही पॉइंट? हाँ जी, दोनों किडनीज की, और दोनों हाथों में करिएगा। दोनों हाथों में मर्म इसलिए बताते हैं ताकि बॉडी में बैलेंस रहे, दोनों तरफ के मर्म एक्टिव होंगे तो आपकी फास्टर रिकवरी होगी। इस पेनिंग, हाँ मतलब सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट, खुरपर। कितने टाइम तक करना है, दबाना है रत्ना? मैम 18 to 20 टाइम्स। 18 to 20 टाइम्स, ओके। और अगर कोई अनकॉन्शियस हो गया है तो आप उसको 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं, जब तक कि वो होश में ना आए। ओके। अदरवाइज नॉर्मल में 18 से 20 बार करना है और मिनिमम 3 टाइम्स करना है। ओके। ये है खुरपर। खुरपर का जो पॉइंट है वो हमारे एल्बो पर आता है, एल्बो के पास। इसकी नाप कैसे देखते हैं? इसकी नाप देखते हैं कि आपने अपना अंगूठा एल्बो की बोन पे रखा और अपने हाथ को ऐसे नीचे तरफ किया, यहां से करके मैंने हाथ को नीचे जॉइंट से नीचे रखा, जहां पे हमारी मिडिल फिंगर टच कर रही है, ये पॉइंट है खुरपर का।
देखिए यस, पेन है। तो जैसे ही आपने इसको किया, आपका थंब अपने आप इस तरफ आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जहां पर आपका थंब आ जाएगा वो एक पॉइंट है, और ये दो मिला के प्रेस किए जाते हैं। इस पॉइंट से आपका फ्रोजन शोल्डर, तो हाथ के जो भी पॉइंट है सब फ्रोजन शोल्डर में तो हेल्प करते हैं, पर ये विशेष होता है आपके बीपी के लिए। होता है आपका होता है, और आप इससे एक क्वेश्चन है, वो लोग कर रहे हैं तो दर्द क्यों मर्म होता हमारी बॉडी का सबसे वीकर पॉइंट होता है, सबसे sensitive। तो कोई भी सेंसिटिव पॉइंट को आप छुएंगे, पेन तो होगा। पेन अगर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सही मर्म पकड़ा भी है कि नहीं। इसलिए दर्द होना जरूरी है। अगर दर्द नहीं हो रहा है मतलब आप सही जगह हो ही नहीं, इसलिए जरूरी है दर्द होना। तो ये जो कुरपर का मैंने नाम बताया, यहां से अंगूठा पकड़ेंगे और ये नीचे लेकर जाएंगे, जहां पर मिडिल फिंगर टच कर दे, दिस इज कुरपर। और इसको आपको ऐसे ही दबाना है, ऐसे। और आपको उंगली दबा के उठानी नहीं है, सिर्फ ऐसे प्रेस करना है, ऐसे। मिडिल फिंगर, एक तो नाप सही आती है, दूसरे मिडिल फिंगर से इसलिए भी प्रेस करते हैं क्योंकि मिडिल फिंगर ऐसी है जिससे सबसे ज्यादा आपका प्रेशर आता है। कोई और उंगली से दबाएंगे तो उतना प्रेशर फील नहीं होगा जितना मिडिल फिंगर से। So, Ratna, somebody is asking कि अगर पेन हो रहा है, इसका मतलब है there is some kind of problem, ये कोई पूछ रहा है। प्रॉब्लम है, इस वजह से हम दबा रहे हैं, लेकिन मर्म को कभी भी दबाएंगे तो दर्द होगा, प्रॉब्लम हो या ना। ओके, मर्म पे पेन होगा ही मैम। जब भी मैम को मर्म को हम स्टिमुलेट या एक्टिव करने जाते हैं, ओके, वो पेन होगा मतलब उसने हीलिंग प्रोसेस शुरू करी। लेकिन मैम तो कैसे, इसलिए पर कैसे पता चलेगा कि जिस पार्ट का प्रॉब्लम है या वो हील हो रहा है, या हमें ये काम कब तक करना है? मतलब जो हमें ये प्रेशर देना है प्रेशर पॉइंट पे, ये हमें कब तक देना है? क्या हम कैसे हील हो रहे हैं ये हमको कैसे पता चलेगा? क्या उसका हाँ बोलिए। हाँ, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी, जो पेन की जो वो पेन है वो थोड़ा कम हो जाएगा या? पेन नहीं होगा, आप जब भी मर्म को दबाएंगे पेन होगा ही। पेन ही नहीं होगा, लेकिन आपका खुद का या जो भी अनइजीनेस है बॉडी में जिसके लिए आपने मर्म किया है, वो जरूर हील होना शुरू। थैंक यू सो मच। है ना? आप अभी मैं ऐसे हैं, अगर आपको ओके तो कुरपर समझ गए ना। अभी मैं और नेक्स्ट बता। और एक सेकेंड, जस्ट टू ऐड, ये क्यों पेन होता है इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये जैसा शुरू की स्लाइड्स में बताया कि ये संधि स्थान है या जॉइनिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है जो कलेक्टेड है, तो वह उसको स्टिमुलेट करेंगे तो सब नॉर्मलाइज होगा, इसलिए यहाँ पे दर्द होगा ही, सबको होगा। हाँ हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। उर्वी ऊपर हो गया। हाँ, अभी तक हमने एल्बो से नीचे तक के पॉइंट्स देखे, अब हम एल्बो से ऊपर के पॉइंट्स देखें। इनको बोलते हैं आणी और उर्वी। मैं पहले इंट्रो दे दूं, आणी और उर्वी पॉइंट्स जो है वो हमारे अंदर की एलर्जीज को, खांसी जुकाम को वो हील करने में हेल्प करते हैं। किसी को बहुत क्रॉनिक खांसी हो गई है, आणी उर्वी अगर वो रेगुलर दबाते रहेंगे तो कुछ ही दिन में धीरे धीरे करके वो हील हो जाएगा।
कोई एलर्जी हो रही है, आप उसको रेगुलर स्टिमुलेट करते रहिए, आपकी धीरे धीरे एलर्जी भी ठीक हो जाएगी। ये मैंने खुद से किया है और मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। मुझे सर्दी जुकाम की मतलब रेगुलर प्रॉब्लम थी, और मर्म से आने के बाद जब मैंने अपने लिए ऊपर शुरू किया, ये पूरा मैं तो पूरे कर रही थी कि आणी उर्वी से मुझे मेरी एलर्जी खत्म हो गई, तो इसलिए मेरा इस पे ज्यादा भरोसा हो गया। हाँ, अभी आणी उर्वी बताती हूँ। जो हमारे हाथ का जॉइंट है, ये जॉइंट, ये जो हमारे हाथ का जॉइंट है, अभी हमें अपने फिर 4 उंगलियां लेनी है और जॉइंट के ऊपर जाना है, जॉइंट के ऊपर, ठीक है। जहां पर हमारी 4th उंगली पहुंच रही है, वहां पर पॉइंट है, ये देखिए, ये पॉइंट आपका इस तरफ भी आता है और इस तरफ पे भी आता है। कैसे हम पहचानेंगे कहाँ दबाना है? हमारी जो मिडिल फिंगर है, यहाँ से सीधे आना है और ये पॉइंट, 4 उंगली के बाद ये पॉइंट आता है। अब हमेशा देखिएगा कि इसकी सीध में आएगा, इसको बोलते हैं आड़ी, और इसके ऊपर 4 उंगली और जाते हैं, इसको बोलते हैं उर्वी, आड़ी उर्वी। ये एक बार फिर से मैम, फिर से बता दो, ये जॉइंट हाँ से, एक बार फिर से। जॉइंट से ऊपर जाना है, ठीक है। ठीक है। और ये जो 4th फिंगर के ऊपर की जगह है, ये कैसे आप लेंगे? आप अपनी मिडिल फिंगर से सीधे आएंगे, 4 उंगली के ऊपर जहां जगह मिल रही है वो पॉइंट आप दबाएंगे। देखिए आपको ये हुआ आड़ी, और आड़ी से 4 उंगली ऊपर जाएंगे, ये हुआ उर्वी। आड़ी उर्वी। तो जिनको भी एलर्जीज हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिनको भी किसी भी तरीके की एलर्जी है, अगर वो आड़ी उर्वी कर लें लगातार 3 महीने तक, तो उनकी एलर्जी खत्म हो जाएगी। इन दोनों पॉइंट को एक साथ प्रेस करना है कि अलग अलग प्रेस? पहले आड़ी को कर लीजिए 18 से 20 बार, फिर उर्वी को करिए 18 से 20 बार। एक क्वेश्चन है, वो है कि would you please show points for pain in fingers? Fingers में किसी के पेन हो तो कौन सा पॉइंट है? आपने आई थिंक It's my question. या दीप्ति। शिप्र और तल हृदय, Okay. इवन बंद भी कर सकते हैं। Okay. Thank you. Okay. ये रिलेटेड, आपके हाथ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो शिप्र से शुरू करके आड़ी तक सारे पॉइंट्स काम करते हैं। No, you had showed me here. So here I don't find any pain here. Can you see me now? नहीं, I should. Now I think you can. See here, I've tried the points here. ये मैंने बताया था आपको, ये हाँ. इनमें पेन होगा? नहीं होता है पेन, पेन है because I had my बीच में pain होता था है, यहाँ पे। बीच में, दोनों के बीच में दबाइए। ओ यहाँ पे? हाँ, 100% पेन। Okay. I was pressing the wrong point. Okay. ठीक है। हाँ. Okay. Thank you. Okay. हाँ, नेक्स्ट। Okay. आड़ी उर्वी हो गया। हाँ, अभी आया अमसा मर्म। अमसा मर्म का जो सबसे जरूरी काम है, वो है आपके फ्रोजन शोल्डर को हील करना। आज का सबसे जो मतलब सबसे कॉमन जो लोगों का इश्यू है, वो है फ्रोजन शोल्डर। हर दूसरे इंसान को आप सुन सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो गया, क्योंकि लैपटॉप के पास बहुत देर बैठे थे, कंटिन्यूस बैठ के काम किया, ये सब फ्रोजन शोल्डर की वजह से होता है। तो उसकी मैं नाम बताती हूँ आपको। अपने हाथ को ऐसे सीधा रखिए। शकुंतला, ये स्किप कर दीजिए पिक्चर। हाँ, ये अपने हाथ को ऐसे रखिए और उसको अपने नेक के पास ले जाइए, नेक के पास।
जिस जिस जगह आपकी मिडिल फिंगर टच कर रही है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अम्सा, अम्सा मर्म। हाथ को सीधे ऐसे रखना है, बिल्कुल सीधे, और यहाँ पे नेक के पास, नेक से टच करते हुए रखना है, और जो आपकी मिडिल फिंगर जहां टच करे, दिस इज द पॉइंट। जैसे आप दबाएंगे आपको पेन होगा। हो रहा है? आप ऐसे नाप समझ लीजिए कि नेक से एक फिंगर के बाद जितनी जगह बाकी, नेक से एक फिंगर बाद, नेक के एक फिंगर बाद, ये पॉइंट है आंसर। कॉलर बोन के ऊपर और कॉलर बोन के नीचे। कॉलर बोन के ऊपर, ये देखिए कॉलर बोन है ये, उसके ऊपर यहाँ पे आपकी फिंगर अपने आप वहां पहुंच जाएगी। जैसे आपने नाप लिया है ना, आपकी फिंगर अपने आप उसी जगह पहुंच जाएगी। ये देखिए, उसको प्रेस करिए और आपको पेन तो आएगा जोर से, फिर आपको फील होगा सडनली कि नहीं, कुछ रिलीफ मिल गया है, और ये पेन अपने आप चला जाता है। तो ये पेन स्टे नहीं करता है। मिडिल फिंगर है क्या इसमें? मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर से ही प्रेशर पड़ता है एक्चुअली। काफी पेन है दोनों तरफ। तो दो, इधर भी ऐसे ही करना है, हाँ, इधर भी ऐसे ही करना ओके। है ना। फिर धीरे धीरे करते करते आपको आदत हो जाएगी, अपने आप दोनों दबा लें। ये हो गया आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए, और स्टिफ नेक के लिए भी यही काम करता है अम्सा। हाँ, अब ये है स्थापनी। स्थापनी जो हमारा थर्ड आई, सभी को मालूम है सबसे ज्यादा हमारी एक्टिव थर्ड आई होती है, जो सब कॉन्शियसली ज्यादा एक्टिव होती है, और इन जनरल हमें पता नहीं चलता, पर हमारी इंद्रियां सारी केंद्रित यहीं से होती है, थर्ड आई। इसीलिए कहते हैं शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा तो पता नहीं क्या, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल यही होता है। इसको बोलते हैं, यहाँ पर होता है स्थापनी मर्म। स्थापनी, उस पर उंगली रखिए, मिडिल फिंगर अगेन, और प्रेस कीजिए। जिनको हेडेक रहता है, जिनको माइग्रेन रहता है, जिनको अननेसेसरी का स्ट्रेस रहता है, मतलब एक आदतन होता है स्ट्रेस कि पता नहीं मुझे क्यों टेंशन हो रहा है, या बहुत एंजाइटी हो जाती है, ये पॉइंट प्रेस करना है। या कुछ भूल रहे हैं एंड यू वांट टू रिमेम्बर कि क्या था याद नहीं आ रहा, आप कुछ सेकंड करेंगे, सडनली यू विल फील कि हाँ नहीं मेमोरी ठीक हो रही, याद आ जाएगा। बिंदी जो लगाते हैं लोग बाग, ये वही पॉइंट है, या तिलक जो लगाया जाता है, वो इसके पीछे रीजन यही है। यही रीजन है। और ये हो गया थर्ड आई, जिसको कहते हैं स्थापनी। तो स्थापनी का सबसे बड़ा रोल यही है कि स्थापनी, ऐसा मुझे फील होता है कि स्थापनी हमारे मतलब मेंटल डिसऑर्डर पे सबसे ज्यादा काम करती है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो, जिनको पता नहीं, वो अननेसेसरी कंफ्यूज रहते हैं यार। होता है कि कोई मेंटली वीक होते हैं, उनको सबसे ज्यादा यही प्रेस करने बोला जाता है, यहाँ से उनकी मेंटल हीलिंग भी होती है। नेक्स्ट, कई बच्चे बड़े हाइपर होते हैं ना, तो कितने बड़े बच्चों पे कर सकते हैं अगर बच्चे पे करना है तो? देखिए ये आयुर्वेद के हिसाब से बच्चा अगर 9 महीने का हो चुका है, 9 महीने, तो आप हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं, हल्का हल्का, उनको प्रेशर नहीं देना है, हल्का हल्का कर सकते। 9 महीने तक बच्चा थोड़ा सा बैठने लायक हो जाता है, थोड़ा कुछ वो खाने लगता है, तो फिर वो ये थोड़ा हल्का फुल्का पेन ले सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं करना। तो ये हो गया स्थापनी मर्म। मैम जब बच्चों के लिए भी करेंगे तभी भी रुद्राक्ष पहन के करेंगे? रुद्राक्ष पहन के करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आपने रुद्राक्ष नहीं पहना तो जिसका दर्द आप फील करने जा रहे हैं वो आप एब्जॉर्ब करके आ जाओ। ओके, थैंक यू। रुद्राक्ष पहन के करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें दर्द तो नहीं हो रहा फिर फोरहेड पे? नहीं, स्थापनी में बहुत दर्द नहीं होता। ओके, स्ट्रॉन्ग बोन होती है ना यहाँ पे, ये सब जो हमने जॉइंट्स पे किए हैं ये वाला,
थापनी में बहुत ज्यादा जॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे बोन है, इसलिए इतना पता नहीं चलता है। और हाँ, आप दबाओगे हल्का, आपको अनइजीनेस तो फील होगी। अगर आप ठीक से दबाओगे तो बहुत हल्का सा पेन आता है। अब ये है अपांग। अपांग मर्म होता है जिनको रेगुलर हेडेक रहता है। ये भी है, पर ये स्पेशली हेडेक के लिए होता है। तो ये हमारे जो फोरहेड के पास में दो गड्ढे जैसे होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, ये वाले, इनको कहते हैं अपांग। एक उंगली इस पर रखिए, एक उंगली इस पर रखिए। आप थोड़ा साइड में होके भी बताओ, ऐसे थोड़ा फेस को साइड में करके बताओ, अंगुली लगा के। हाँ ठीक है। हाँ, ये जो हमारी कनपट्टी है, एक उंगली इस पर रहेगी, एक ठीक इसके ऊपर एक गड्ढा होता है। देखिए आप करेंगे अपने आप पता चल जाएगा। दो गड्ढे होते हैं, यहाँ पर होता है कि यहाँ पर होता है। ये देखिए, दोनों तरफ उंगलियों में उनको लेना है और ऐसे प्रेस करना है, हल्के प्रेस करना है या गोल घुमाना है? नहीं, प्रेस करना है। इसके नीचे मर्म है। पेन तो आपको फील होगा, पर आपका हेडेक इससे हील हो जाएगा। इसको प्रॉपरली करने के लिए तो सेवा में आना पड़ेगा। सेवा में आपकी वर्कशॉप हो रही है। जो सेवा में आएगा उसको तो सामने प्रैक्टिकल करके मिलेगा। बस, सारी चीज ऑनलाइन नहीं हो सकती, उसके लिए सेवा आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सेवा में कुछ और पॉइंट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, पर अभी के लिए तो ये हेडेक के पॉइंट्स हो गए। मेनली हेडेक के लिए होते हैं, और जिनको रेगुलर माइग्रेन है वो भी अगर इसको करते रहेंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा। ये हो गया अपांग मर्मा। अब ये है श्रृंघाटक। ये जो है, ये हमारे जहां से नोज की बोन शुरू होती है दोनों तरफ, ये आंख और नाक के बीच में यहाँ पर ज्वाइंट होता है। देखिए, देख पा रहे हैं? करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। ये और यहाँ पर ये, इनको प्रेस करना है आपको धीरे धीरे। जहां पर बोन होती है वहां पर पेन कम होता है, पर होता जरूर है। ये देखिए, आपको फील होगा कि महीन, मतलब यू कैन फील कितनी थिन एक लेयर जा रही है नर्व्स की। यहाँ बहुत नाजुक नाजुक नर्व्स है। ऐसे लगता है ज्यादा दबाए तो परेशानी हो ये जाएगी। आपको सर्दी जुकाम के लिए होता है, और आपकी वेबसाइट आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। हेवीनेस लग रही है वो भी ये कर सकते हैं। इससे आपका सर्दी जुकाम में भी मदद मिलती है हिलाने में, और प्लस आपके आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप दोनों हाथों की उंगली से करेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्ट पता चलेगा। रितिका, आप दोनों हाथों से करके देखिए। ओके, डन। ये हो गया श्रृंगाटक। तो अभी मैंने पिछली बार अपर एक्सट्रीमिटीज बताई थी, हमारे कमर के ऊपर हिस्से में जो भी प्रॉब्लम्स हील होती हैं। आज मैं बताऊंगी हमारे कमर के नीचे के प्रॉब्लम कैसे हील होते हैं। तो ये सबसे पहला जैसा साइन दिखा रहे हैं, जैसे हमने हाथों में क्षिप्र मर्म किया था, ठीक वैसे ही हमारे पैरों में भी होता है। शकुंतला, मुझे वीडियो दिखा दीजिए, स्क्रीन दीजिए। कर दिया। हाँ, तो अभी मैं बताती हूँ, मुझे खड़े होके बताना होगा। यस, ये मेरा पैर है, ये अंगूठे और उंगली के बीच की जो जगह है, यस, देख सकते हैं? इसको प्रेस करना है बस, बिल्कुल जैसे हाथ में किया ना जॉइंट पे, कॉर्नर के जॉइंट के, सेम उसी जगह यहाँ पे भी करना है। हाँ, दर्द हुआ तो हाथ और पैर सारे करने जरूरी है, सिर्फ हाथ से करके हो जाएगा? देखिए, अगर आपको अपने मतलब रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए अपनी, तो आप हाथ पैर दोनों को करिए, और नहीं तो आपको जहां प्रॉब्लम हो रही है वहां कर लीजिए।
तो ये दोनों के बीच में जो पॉइंट है इसको करना है। ये है पद शिप्र मर्म, ये पैरों में जो शिप्र मर्म है वो है। क्लियर? ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे आपको पैरों में दर्द, ठीक है, कमर में दर्द, अच्छा। थाइज में जो कई बार नसें खिंच जाती है, साइटिका, हाँ। ये सबसे आराम मिलेगा। पैरों के जितने पॉइंट्स मैं बताऊंगी वो सब आपको साइटिका में हेल्प करेगा, सारे पॉइंट्स। इवन आपके घुटने के दर्द से लेकर नीचे से कमर तक जो भी इश्यूज आ रहे हैं आपको, वो सारे इस पॉइंट से जाएंगे। ठीक है? ठीक है, गुड। हाँ, नेक्स्ट तल हृदय। हाँ। ये काफी कि जैसे हाथों में गांठ ठीक ही पैर में तल हृदय, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, दिखाइए। तो जैसे ये यहाँ से आप चार उंगली अच्छा। को दीजिए, 4 उंगली वहां से, ठीक है, उंगली के नीचे से जहां पे आपके लास्ट उंगली आ रही है वो आपका तल हृदय है, ये मिडिल में। हाँ, ठीक है। मैंने बता दिया पैर के जितने पॉइंट्स हैं उससे आपका पैरों से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड कोई भी इश्यू हील होगा। सारे पॉइंट्स उसमें आपको करने हैं। कि जब श्री कृष्ण को बहेलिया ने तीर मारा था तो तल हृदय पर ही तीर लगा था, इसीलिए उनकी तुरंत मौत हो गई थी। तो इसलिए आप देखिए, आप अगर पत्थर पे जा रहे हो और यहाँ कहीं पत्थर चुभ जाता तो सबसे ज्यादा पे भी कर सकते ओके, ठीक है। तो ये हो गया तल हृदय, समझ गए ना सब लोग? यस, समझ गए, समझ गए। हाँ। अभी आता है कुल्फ। यस। कुल्फ, हाँ ठीक है, अभी बताती हूँ। हाँ, ये जो हमारा पाँव है, ये जो हमारी हड्डी है एंकल की, देख सकते हैं अंदर अंदर की साइड में। हाँ। इस हड्डी और ये नीचे की हील, हाँ, दोनों के बीच में पड़ता है गुल्फ मर्म। ये दोनों के बीच में गड्ढा भी है यहाँ पे। हाँ, तो जैसे ही आप नीचे से लेकर ऊपर लाएंगे अपना, यहां से आप अपनी उंगली को जैसे ही नीचे से ऊपर लेकर आएंगे, आपको इन बिटवीन ये मिलेगी नस, ये है गुल्फ मर्म। इससे क्या फायदा? करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, मिला तो है। फायदा क्या है इससे? हाँ, गुल्फ मर्म का फायदा है कि इससे आपका कमर दर्द, स्टिफनेस, जो हमारे बहुत देर खड़े रहते हैं तो अकड़ जाता है ना पूरा शरीर, और इसका इमीडिएट रिलीफ मिलता है, इमीडिएट रिलीफ। तो उसमें हमारे कमर दर्द में काम आया, साइटिका में काम आया, और स्टिफनेस में काम आया। तो गुल्फ मर्म इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज में इसको बेस्ट मर्म बोला जाता है। ये वेरिकोज वेन्स के लिए भी ये वाला? वेरिकोज वेन्स के लिए भी, करेक्ट। वेरिकोज वेन्स का और एक है जो मेजर वेरिकोज वेन्स के लिए है, वो इसके बाद आया। नेक्स्ट। पर ये सबसे ज्यादा काम करता है आपका इसके ऊपर, बॉडी की स्टिफनेस के ऊपर। आपको बैक में पेन हो रहा है, आपके कमर में बहुत दर्द है और आप झुक नहीं सकते, इतना पेन है, आप करिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, ये गारंटी है। और नहीं तो 3 months तक 3 times 18 to 20 times। ये जो इमीडिएट स्टिफनेस ठीक होती है ना, उसके हाँ। बाद वो ऑटोमेटिक लोग करने ही लगते हैं, क्योंकि वो इतना रिलीफ दे देता है। राइट। और लोग चेयर पे इतनी देर तक बैठ के काम करते हैं, लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, नेचुरली बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। इंद्रबस्ती, हाँ,
इंद्रबस्ती जो है, हाँ दिखाइए। इंद्रबस्ती जैसे हमने हाथ में किया था, इंद्रबस्ती वैसे ही पैरों में है। ये सबसे मेजर काम करता है वेरिकोज वेन्स पे, मैजिकली काम करता है। हाँ मैं दिखाती हूँ। ये जो पैर है, यहाँ से आपने 4 उंगली और प्लस 4 उंगली, 8 उंगली का डिफरेंस लिया यहाँ पर। ये 4 + 4 ये पॉइंट आपका बनता है, और इसको आप प्रेस करिए, और आप प्रेस करके मिडिल देखिए में या कितना पेन बैक हो रहा है। में, कहाँ पे? नहीं नहीं, बैक में, क्योंकि सामने बोन है इसलिए यहाँ नहीं हो सकता। अच्छा, पीछे। पीछे आता है, ये सॉफ्ट हिस्से पर। आपके हील से पैरेलल आइए, यहाँ पर आता है। ऑल राइट। इंद्रवस्ती। मैम इससे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी ठीक होता है? बिल्कुल होता है। आप लेग के जितने बता रही हूँ, अगर आपने रेगुलर 3 महीने कर लिया, आपको अपने आप फर्क दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। हाँ, इसको कहते हैं जानू मर्म। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है एक एज के बाद, वो होती है घुटनों का दर्द। लोग सर्जरी के लिए जाते हैं, नहीं तो और दूसरे तरीके अपनाते हैं। पर अगर मर्म थेरेपी लोगों ने रेगुलर कर लिया, तो आप अपना नी भी ठीक कर सकते हो। ये इश्यू मुझे भी आया था, मैंने भी जाके ऑर्थोपेडिक को दिखाया, सब किया, उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयां दी उस टाइम के लिए कि आपका पेन ठीक हो जाएगा, पर उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। पर जब मैंने मर्म थेरेपी करी और मैंने जानू मर्म किया, ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि आज टचवुड मुझे कोई भी नहीं। उसका तरीका मैं बताती हूँ आपको। हाँ बताइए। हाँ सही है। ये आपने अपने ये आपका बॉल है, ये इसका कटोरी है, ये रखिए ऐसे, और उंगलियां आपकी जाएंगी नीचे ऐसे, ठीक है? हाँ। और इसको आपको अंदर की तरफ प्रेस करना है, नहीं करना है, अंदर की तरफ प्रेस करना है। करके देखिए, पता चलेगा, अंदर की तरफ। तो हमारे ये स्पेशली ये नी बोन में जो लिक्विड कम होने लगता है, वो धीरे धीरे वापस से लिक्विड लेकिन ये फॉर्म पेन होना शुरू पॉइंट्स पेन नहीं होते हैं ना, जानवर? नहीं, ये इतने पेन, मैं बोला ना, जहाँ बहुत हड्डी है वहां पेन नहीं है। अच्छा ठीक है। इसको मुझे आपको अंदर ध्यान रखना है कि आपको इसको अंदर की तरफ पिन करना है। मतलब अंदर आपको, की तरफ का मतलब क्या हुआ मैम? सॉरी, अंदर की तरफ का मतलब क्या हुआ? आपको इन्वर्ट करके उसको प्रेस करना है। इन्वर्ट, देखिए ये, अब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है, इन्वर्ट। इन्वर्ट प्रेस, आपकी उंगलियां नीचे है, आपके थंब दोनों साइड में है, और आपको इन्वर्ट प्रेस करना है। उंगलियों से प्रेशर डालना है ऊपर की तरफ? उंगलियों से नहीं डालना, अंगूठे से। थंब का ये है ना नीचे, हाँ palm से, ओके। ये दोनों साइड आपको देखिए, कटोरी के दोनों साइड रखने हैं, और ऐसे करना है, इन्वर्ट प्रेस करना है। ये है जानू मर्म। आप कभी भी बैठ के सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने खाना तुरंत ना खाया हो, और आप टीवी देखते देखते कर सकते हो, सोने से पहले कर सकते हो, मॉर्निंग में बिस्तर से उठने से पहले कर सकते हो। ये रिलीफ आपको मिलेगा, ठीक है? मैम ये दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से बिल्कुल। जो बुजुर्ग लोग, हाँ बोलिए। जो घर में बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, वो अपने हाथ से नहीं कर सकते, तो उनको हम ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करके उनको मतलब आपको ये हाथ ऐसे अंदर तक प्रेस करना है,
आउटर मतलब नहीं, ऐसे inside। हाँ, घुटनों से अंदर की तरफ लाते हुए प्रेस करेंगे। कैन वी यूज एनी ऑयल? हाँ मैं बताती हूँ, इसको बोलते हैं जानुवस्ती, जिनको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है। और ये आपको जानू करते करते वक्त लगेगा, तो थोड़ा और उसको जल्दी करने के लिए आपको ऐसे आटे की लोई बनानी है, ठीक ठीक है। है। आटे को और उसकी कटोरी के इर्द गिर्द ऐसे लगा देंगे जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, हम्म। ठीक है। और हल्का गरम करके, हल्का गरम करके हम्म। तिल का तेल भरना है उसके अंदर। सीसम ऑयल, तिल का तेल। हाँ, इसमें ऑयल वो भरना है, यस। क्योंकि तिल का तेल की खुद की क्वालिटी होती है कि वो पेन रिलीफ कर देता है, और वो बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होता How long do you keep it for? ये तिल का तेल? 45 है। मिनट। नॉर्मली तो 40 मिनट्स है, पर अगर थोड़ा जल्दी भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके ओके। मतलब 40 मिनट, जो जो लेटेगा वो आराम से लेट जाएगा, और आप डालिए और वटेवर कुछ भी अच्छा सा म्यूजिक लगा दीजिए या मेडिटेशन का कुछ लगा दीजिए, और उसकी मेंटल हीलिंग भी होती जाएगी और फिजिकल हीलिंग भी होती जाएगी। तेल निकलेगा नहीं क्या वहां साइड से? नहीं निकलेगा, इसीलिए तो आटा लगाया गया ना। अच्छा ठीक अच्छा, है। एक और हम बात आटा मैम। लगाएंगे तो उसके बाहर नहीं निकलेगा तेल। जी बोलिए। क्या मैम इसको लगाने के बाद में हम हाथ के पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं? मतलब हाँ ये घुटनों में लगा है तो ठीक है, क्या, आप मतलब वो कर लो, लगा है हाँ हाँ, लेटे हैं तो हम बिल्कुल कर उनका सकते कर दें, हैं। ठीक है, या फिर पैर के पॉइंट्स कर दें? पैर के पॉइंट्स कैसे कर पाएंगे अगर ये लगा होगा हाँ, आपने। हिलेगा। यस यस। आप हाथ के कर सकते हैं, खुद से करना है तो कर दीजिए, किसी और का भी करना है तो भी पैर का मत करिए, क्योंकि पैर का करेंगे तो ऑयल हिल जाएगा। हाँ ठीक है, वो और ये जो अंडरस्टैंड। आपने तेल की रेसिपी करी है, इसको आप हफ्ते 10 दिन में एक बार कर सकते हैं, या 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। लोग ज्यादातर इसको ठंड में डालते हैं, पैरों में ये लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है, तो ठंड में आपको तेल से आराम भी मिलता है, और तिल के तेल की तासीर गर्म होती है, जी। तो इसलिए मालिश तिल के तेल से कराने और इसमें क्या डिफरेंस है? मालिश सिर्फ तिल के तेल से नहीं कराई जाती, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है। इसलिए हमेशा तिल के तेल में कोई दूसरा ऑयल मिलाया जाता है, चाहे नारियल मिला लीजिए, चाहे ऑलिव ऑयल मिला लीजिए, चाहे बादाम ऑयल मिला लीजिए, पर कभी सिर्फ तिल के तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तेल वो कितना डालना बॉडी होता है? बहुत ज्यादा गर्म करता है। सॉरी, इसमें तेल कितना डालना होता है? वो डिपेंड करता है आपने आटे का कितना बड़ा बनाया है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, आई थिंक 10 ml 20 ml पड़ता होगा। जब एक लेयर बस नीचे बन जाए, दैट्स ऑल। नीचे क्लियर बन जाए, आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे तेल सोख लेंगी आपकी घुटने। हमारा शरीर बहुत जल्दी तेल सोखता है, और स्पेशली ये इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये जल्दी और भी ज्यादा तेल सोखते हैं। थैंक यू। ये किसी का क्वेश्चन है शायद। हाँ, एक क्वेश्चन है, किसी को बर्निंग सेंसेशन हो पैर में तो क्या करना है? बर्निंग सेंसेशन के तल हृदय, उसका अच्छा, बेस्ट है तल हृदय। ओके। तल हृदय से उसका ये बर्निंग सेंसेशन खत्म होगा। ये वाला पॉइंट है, हाँ, ये तल ये हृदय, वाला, सॉरी ये वाला, तल हृदय। दिस पॉइंट। तल हृदय तो आप करिए ही करिए, शिप्र भी कर सकते हैं, शिप्र भी नुकसान नहीं करेगा। और कहाँ पर बर्निंग सेंसेशन है? ये नीचे है, पाँव पैरों में। पैरों में। हाँ, तो अभी इंद्रबस्ती भी कर सकते हैं फिर। मैम क्या आप ये पीडीएफ शेयर करेंगे? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ग्रुप पे शेयर करेंगे, ये तो हमारे शकुंतला हाँ, ही एक्सपर्ट जो। थैंक यू सो मच। थैंक यू हाँ सो मच ग्रेटिट्यूड। चलो एक You और know, just one question. On the हाँ, side of the calf, outside of side of the calf, वो पेन के लिए what is the point? Which point is it? Same all the points? साइड ऑफ काफ, ओके। हाँ, दिस वन, outside of the calf. Leg, शोल्डर, पैर में, lower हाँ, leg, but ओके outside of the calf. ओके ओके ओके। उसके लिए आपका इंद्रबस्ती है मेन, अच्छा और आपका है ये गुल्फ, अच्छा ठीक है, ओके। सॉरी। और एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है लेग का आणी उर्वी। ओके, दिस वाज इंद्रबस्ती।
हील पेन के लिए ये बताएं। है आड़ी उर्वी, जैसे हमने हाथ में किया था, देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ, जैसे मैंने हाथ में आपको दिखाया था ये ऊपर, वैसे ही सेम पैर में करना है। ये देखिए यहाँ पे घुटने से ऊपर 4 उंगली आड़ी, उससे ऊपर 4 उर्वी, आड़ी और उर्वी। ये 4 के बाद हुआ आड़ी और ये हुआ उर्वी। ये देख सकते हैं आप लोग, आड़ी और उर्वी। लेकिन आप अपनी उंगलियों की ही लेनी, आप किसी और के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रत्ना जी क्वेश्चन है मेरे को कि आप हील पेन के लिए बताइए। मेरे को कई बार हील में पेन होता है। गुल्फ करिए, गुल्फ और तल हृदय। अच्छा, थैंक यू। गुल्फ इज दिस। हाँ, गुल्फ इज दिस, और तल हृदय जो पांव के तलवों में होता है। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Ratna. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ शेयर करेंगे हम लोग, और फिर जिसकी जो भी क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द ग्रुप। एंड अभी भी किसी को नंबर नोट करना है, कुछ करना है, यू कैन क्लिक अ पिक्चर एंड पीडीएफ तो वी विल शेयर। Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू। थैंक यू शकुंतला, आपका बहुत बहुत सपोर्ट है। मतलब मैम, आपको तो पता ही है, टेक्निकली जो सपोर्ट शकुंतला से मिलता है वो किसी से नहीं मिलता है। टेक्निकल एडवाइस। एब्सोल्युटली राइट रत्ना, मैं तो शकुंतला को कभी भी मैसेज करती हूँ, सर्टिफिकेट बना दो, ये कर दो, वो कर दो। हक है हमारा भाई शकुंतला के ऊपर, है ना? हाँ, वो शी कैन नॉट रन अवे। जब शकुंतला ने मुझे कहा था तो मैंने कहा शकुंतला मेरे पास कोई पीडीएफ तैयार नहीं। अरे आप हाँ तो करो ना, पीडीएफ मैं बनाती हूँ। अब मुझे हमारे संस्कृत क्लास की हमारी गुरु है ये शकुंतला जी। गुरु जी, वी हैव दिस गुरु जो हमें सब कुछ एक्सप्लेन करती है। तो शकुंतला, थैंक यू फॉर बीइंग हू यू आर, एंड रत्ना थैंक यू बच्चा, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। और वो नी वाला आई एम गोइंग टू ट्राई ऑन माय हस्बैंड हैविंग पेन। तो ये जो तुमने बताया तिल का तेल एंड वो गरम करके 40 मिनट्स उनको लेटाना मुश्किल है, बट करना पड़ेगा। 40 मिनट्स लेटा नहीं भी लेटना चाहते हैं, थोड़ा कम लेट जाए, मतलब उन्हें थोड़ा सा फर्क महसूस होगा, अगली बार वो 1 घंटा लेट जाए। आई नो, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो वो आई थिंक इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, बट बहुत ही इजी है ना रत्ना? कुछ और भी अच्छा, बहुत इजी है करना, ओनली करना पड़ेगा, वी हैव टू डू इट। यस मैम। कुछ और भी पॉइंट्स हैं मैम जो मैं रिट्रीट में बताऊंगी जब फुल वर्कशॉप होगी, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई थिंक थोड़ा कुछ बाकी रहना चाहिए। Yeah, but thank you for I'm super sharing all the points. excited। आप आएंगे यस प्लीज कम। और जो नहीं आ पाएंगे वो आप लोग सोचिए, हम लोग सेवा के लिए पूरे साल इंतजार करते हैं और इस बार तो 4 साल बाद कर रहे हैं। करेक्ट। अभी भी 2 महीने हैं, भगवान से प्रेयर करिए, एप्लीकेशन लगाइए, मंजूर हो जाएगी, आप आ जाएंगे, हम सबसे मिलेंगे। मैं तो बहुत दिन से लगा रही हूँ शकुंतला जी, लगा दीजिए। हस्बैंड का ऑपरेशन हो रहा है तो आई एम बिजी। बेस्ट विशेस, तो आई बी एबल टू अच्छे से हो जाए। मतलब वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल, the more the merrier। आइए, it is a wonderful time for everybody to meet physically। Yes, और मैम मुझे याद है 3 दिन बाद जब लोग बाय बाय कर रहे होते हैं तो वो हक करके रोते हैं, इतनी जल्दी क्यों हो गया? I know। एक्चुअली इतना ही मजा आता है, इतना कनेक्ट होते हैं। Please come। और
शी इज ऑन थिंकिंग थर्सडे, रत्ना है ही, अगर कोई क्वेरीज हो तो रत्ना को आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, है ना, मर्म के लिए। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर विद अस, और हमें Thank you. प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, थैंक यू अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुला Thank you so पाए। much, ma'am. Thank you. Okay, let's Thank you, ma'am. Thank everybody you, get a Ratna ji. seat, Thank you. Ratna, with a little heart. Thank you, Ratna. बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत Thank थैंक you. यू सो मच। ओके जी, नमस्कार। Thank you.